सब्सक्राइब कीजिए एस्पायर आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Good afternoon everyone. Welcome to 2020 session of RAW. Now first of all I want to introduce what exactly is the reason behind this batch. Aspire started in 2013 the Target 50 batch. And the Target 50 batch, the major target was that at least 50 people can qualify the exam with the help of mains, because according to me mains is everything regarding the UPSC preparation. Those people who are good in mains, they are equally perform good in the PT examination. This is my overall observation, that those people who always prepared for mains, even they wrote the mains, they are making 10-15 question extra than the person who never prepared for mains examination in a good manner. In the mains examination, our major struggle is with time. If I am calculating from today, the potential time is just 75 days. So we are just having 75 days to prepare for optional for 500 marks and to prepare GS 1, 2, 3, 4 for 1000 marks and essay writing for 250 marks. And this time is very, very less to prepare all the subjects. Majority of the people are providing 70% time in the optional, but optional cannot convert into 5000 marks. But this 70% time is essential because we never prepared for optional in a good manner. And if we are not preparing the optional in a good manner to score at least 260 to 300 marks, we can never be IAS. हम IAS तो कभी नहीं बन सकते. Maybe we are selecting in the allied, but not the IAS. तो IAS बनने के लिए there is a need of some score, minimum 260, maximum 300. In the same manner for GS, at least we can score 400 marks, maximum 500 marks, which is possible. And in the essay, we can score 140 to 150 marks. Now there is no need for interview and the weariness of the interview. और यहीं पर हमारा time management काम आता है, because somehow we people are not in a condition to maintain the time. तो RAW का आविष्कार इसलिए किया गया, we invented RAW for three important purposes. Number one, time. Number two, quality of content. Number three, analytical skills. And number four, writing practice with brainstorming. अब ये एक साथ हम खुद नहीं कर सकते हैं. We are capable, but not in 90-70 days, because we are lacking in discipline. We are having the worried about the PT examination, whether we qualify or not, and we just waste our time over a bit of time, and we are not in a condition to score good. That's why in the RAW, we are working upon this time instrument very much, quality instrument very much, as well as brainstorming and writing building very much. Now under the RAW, what exactly is our technique? RAW is crafted that you can maintain the balance between optional and you can also maintain the balance between the GS. In the GS, paper number 2 and paper number 3 are become very tricky. अगर आप इस साल के marks देखेंगे, 2019 जिन बच्चों ने दिया, they scored very less. Majority of the people in paper number 2, paper number 3 are below 70 marks. My students are also below 70 marks. Those who are not giving appropriate time for understanding the question. अगर आप पेपर देखोगे 2019 का, it took around 15-20 minutes to understand the question itself. कि what exactly are the question? पूछना क्या चाहते हो? वो है ना 3 इडियट में, भाई कहना क्या चाहते हो? तो यूपीएससी का पेपर देखने के बाद बड़े बड़े धुरंधरों के मुंह से ये बात निकली, पूछना क्या चाहते हो? Because they are having their prototype answer in the mind, but they are asking in the changing governance, the governance paradigm are changing from past to present. What do you understand by the government paradigm? What are the components of this government paradigm, and what government can do to make governance more effective? अब जनता governance ही सुन के आई थी, governance paradigm कभी किसी ने सुना नहीं. Nobody can understand what is governance paradigm. इसी तरीके से they are using the language now. Our constitution is a rigid constitution or a living constitution. If it is a living constitution, discuss what exactly are the quality of living constitution of the world, particularly India, and how this living constitution can adopt in the socio-economic parameter of this country. तो आप अब यूपीएससी को समझने की कोशिश कीजिए. It is not about coachings. It is not about material in the market. It is about personality now. कि people, how much they can ingrain the concept in their personality and what exactly they understand by governance paradigm. Governance हम सबको पता है. Administration. Paradigm मतलब कैसे change हुआ, past to present. अब आप सोचना शुरू कर दो, governance paradigm past to present कैसे चला. हाँ यार, governance paradigm चला नीति आयोग, एक पर governance paradigm हो गया.
Top down approach to bottom up approach, Niti Aayog. First governance paradigm. Transparency, accountability, RTI to CP gram. ये second paradigm हो गया. This is the second paradigm of the governance in our country. The third paradigm, the government oriented, that's a political party oriented government to people oriented government. mygov.in, people participation. Financial decentralization, 14 finance commission, 15 finance commission, another government paradigm. And the last governance paradigm, which is very essential, is e-governance. अब इसके fault ये सब पता होने चाहिए आपको. तो try to understand. The main problem is time, and then second is quality and understanding. तो हमारे लिए सबसे important क्या था when we crafted this raw batch? It is not that we can earn through this batch. It is for that we can earn also and we can give help to the people also, and that's why we devised this 20 days batch. तो हमने क्या devise किया? We devised a very wonderful thing for you people. We crafted the strategy that every Monday, every Wednesday, and every Friday, we are coming with the batch 12 to 6:30 p.m. And in this, I can cover around 40 to 100 topics. When we are covering 40 to 100 topics, these topics are in the form of mind maps, where we can work upon structuring. I started teaching in 2010-11. When I started teaching, my first student in the new pattern was Saloni Rai, Vishal, Nandini, and these people are IAS now. Vishal recently scored 91 marks. And he also talked about the same thing that we learned from the sir, the structuring. You can watch the video on YouTube. Now, what is the structuring? Structuring says that UPSC is having around 125 topics in every paper. If they are having 125 questions in every paper, then 500 topics we can prepare. Okay, done? We can prepare 500 topics. Now, these 500 topics, when we selected these 500 topics, we should have 2-line introduction for every topic. 2-line introduction. और वो हर टॉपिक का लिखा हुआ होना चाहिए in advance. That before exam, we can revise this 125 topics in a very good manner. Then we should have the objective of that topic. Then we should have the body of that topic. Then we should have the criticism of that topic, and for everything 4 points. With examples and with some case studies. These are the ingredients. जो कुछ लोग शायद आपको पढ़ाते हैं, मैं औरों के बारे में नहीं जानता, but I am teaching the same thing. And that's why my score the people score in my classes 400 plus. Whatever is that is a critical level of the examination. 400 नंबर तो minimum आएंगे अगर आप इसको कर लो, लेकिन इसके पीछे रीजन है कि आपको ये करना पड़ेगा और वो किसी के थ्रू करना पड़ेगा. फिर इसके बाद we can have way forward, in which we should have 4 points allied with other subjects. For example, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कंक्लूजन मैं आपको रेडीमेड बताऊंगा 2-3 तरीके के. अब मेरे से मैक्सिमम 200 बच्चे पढ़ेंगे, उनकी कॉपी एक साथ तो आएगी नहीं, तो सब लिख सकते हैं. अब मैंने फूड प्रोसेसिंग के कंक्लूजन में डीपीएसपी को जोड़ दिया. आर्टिकल 47, आर्टिकल 40 पंचायती राज. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो पता चलेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज कमिंग अंडर पंचायती राज. अब ये मैं आपको रेडीमेड 2-3 चीजें बना के दे दी कि इन द इंट्रोडक्शन वी कैन राइट विद FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड एंड हंगर रिपोर्ट. And in the conclusion, we can end with DPSP. 2 types of DPSP. One is local government, Article 40 and 47, nutrition. And we also end with the National Food Security Act, as well as we can also end with Gandhi philosophy of moral economics. अब ऐसे करके मैं आपको ये 5 चीजों पर हर टॉपिक के ऊपर पकड़ बनवाऊंगा. तो दिस रॉ बैच क्या है ये पहले जानना जरूरी है. आपका टाइम पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमारी फाइट टाइम से है. आप लोग बहुत शॉर्ट टर्म में सोच जाते हो पैसा. तो एस्पायर हमेशा इस तरह से काम करते हुए आया दैट वी कैन प्रोवाइड यू सम ऑफ द गुड डायमेंशन, एंड दिस गुड डायमेंशन यू कैन लर्न व्हेन यू कैन रिसीव द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 दिन पढ़ेंगे 12 से लेकर 6:30 बजे तक. In every class we can do 40 to 100 topics. In 40 to 100 topics we can work upon this thing: introduction, objective, body, critical analysis, and सबसे आखिर में way forward. Plus you receive the booklet of 40 question and answers. By this we can complete 800 question and answer, 200 question answer of every subject, which is highly important for this year. So in the 40 questions I can try to provide you all the relevant questions with 10-year question. जैसे आज आपको जो बुकलेट मिलेगी
This is this booklet. Now in this booklet, maybe you people received it. Our team already mailed you if you mail your email ID. Now in this booklet, you people are getting the questions with answers. And in the last 15 questions, these are the questions of 2017, 18, 19. That you people can understood. हर क्लास का हमने एक नाम रखा है, जैसे आज की क्लास का नाम क्या है हमारा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. आज हम गवर्नेंस नहीं करेंगे, गवर्नेंस इज डिफरेंट. टुडे क्लास इज इंडियन पॉलिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन. लास्ट ईयर 105 मार्क्स कम्स ओनली फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, जो अभी तक नहीं आता था. तो लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ना भूल गए. एंड दे आस्क्ड सिंपल क्वेश्चन लाइक पार्लियामेंट्री कमिटीज, interstate councils and their role, और बम फट गया. Because everybody is coming with some of the governance type of questions only. RTI, what do you mean by good governance? Supreme Court orders regarding the right to privacy. Only these type of questions these people are doing, nothing else. Under all this regard, the things cannot be possible. Therefore, we are providing 40 question answer in every class. Total is 800 question and answer plus content booklet. For example, for internal security, we crafted a very small booklet. And this small booklet is comprising of all the contemporary orientation of internal security with their present dimensions and the present policies. तो जो भी सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट मार्केट में लैक करता है, लाइक साइंस एंड टेक, लाइक internal security, like international relations, because here language are very dynamic now. So we are also providing the booklets of all these dimensions. अब ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, that is 21st, and this batch will proceed till 4th December. 20 sessions. This batch is combined with writing skill development program. Every Saturday and every Tuesday, writing skill development program will take place 3 to 6, and 6:30 to 9:30 will be discussion. And this test series is combined with this raw. Now in the starting 3 classes we are covering governance, polity. The first test paper is on 24th, and on 24th we are only asking polity and constitution. Governance. So 3 sectional paper are there, and these 3 sectional paper belong to one governance, one polity, one IR and IO, and 4th paper is of composite, whole paper 2. Then in the raw we are doing economics. The 5th paper is of economics, then internal security, science and tech, environment and current topics, and then composite paper. So we that's a smartly crafted the strategy. By 14th of December, you completed 800 question and answer, 400 mind maps, and 21 session of writing skill development program, which is 600 questions again. 800, 600, 400, 1800 question and answer. 1800 question answer you people can write just in 1.5 month from 21st October till 14th of December, including Hindi paper. क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कोई नहीं कराता और बहुत सारे बच्चे हिंदी में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं. तो वी आर आल्सो क्राफ्टेड हिंदी पेपर. अरे यार मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैं आज भी स्टूडेंट ही हूं, एंड आई एम नोइंग व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टूडेंट इज फेसिंग. So believe me, I am your senior only. Never treat me that I am a teacher who just want your admission. No, I want your success. And that's why we crafted this particular things in a targeted manner in all the 3 format. तो आप बच्चे जब आप क्लास करोगे तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, जूम पर भी कर सकते हो, और इसके बाद आपको 3 अटेम्प्ट और मिलेंगे ऑनलाइन पर, तो आप उन्हें सुन भी सकते हो दोबारा से. तो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल नाउ. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजिडिटी. वी जस्ट वांट टू हेल्प यू. दैट्स व्हाई वी क्राफ्टेड दिस पर्टिकुलर सेशंस. अब मेरी तरफ से क्या प्रीरिक्विजिट है? मेरी तरफ से प्रीरिक्विजिट ये है कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, व्हेन वी कंप्लीट आवर क्लास अराउंड 6:30 और 7, यू कैन रिवाइज द सेम क्लास बाय 11 PM. आप इसके बाद 4 घंटे जरूर देंगे, और इस पूरे सेशन को जो हम एक दिन में करेंगे उसको 4 घंटे में रिवाइज करके छोटा छोटा लिखेंगे. इसलिए हमने हर बुकलेट के आखिरी में पेज दिए हैं क्लास नोट्स के. यहीं पर आप अपने क्लास नोट्स बनाइए और आप इसी बुकलेट को 4 घंटे में रिवाइज कीजिए. यूपीएससी का एक मंत्र होता है, कोई भी कंटेंट जब तक आप 20 बार रिवाइज नहीं करोगे आप मेंस नहीं लिख सकते. 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं. जिन्होंने मेंस लिख रखा है मेरी बात समझ पा रहे होंगे. 2 मिनट में जो माइंड रिकॉल करेगा ना वही लिख सकते हो, पर आपके माइंड को सिर्फ 2 मिनट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ज्यादा होगी ना नुकसान हो जाएगा, ज्यादा लिख जाओगे, कम होगी और भी नुकसान हो जाएगा. तो हर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समराइज्ड फॉर्म में 2 मिनट में यहां होनी चाहिए. एंड आई कैन मेक यू लाइक दिस कि 500 टॉपिक 24 आवर्स आपके दिमाग में घूमे. जैसे क्वेश्चन है खट 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 खट
इंट्रोडक्शन, कुछ सोचना ही नहीं है, सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यूपीएससी आपको सोचने का मौका नहीं देती है। वो कहती है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, जो आपके स्किल्स होंगे आप वही लिख पाओगे। जिन्होंने मेंस लिखा मेरी बात को समर्थन जरूर करेंगे, और जिन्होंने नहीं लिखा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसको लगेगा मजाक कर रहा है। बिल्कुल मजाक कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मेंस लिखोगे भाई साहब, दादी दादा परदादा इस दुनिया का हर भगवान तुम्हें याद आएगा, जब तुम्हारा टाइम भागेगा और तुम्हारा पेन कहेगा अब रुक जा, नहीं आ रहा। That's why learning is over. It is a time of practice. हम हमेशा लर्निंग करते रहते हैं, तो हमें लगता है हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी इज नॉट अबाउट लर्निंग, यूपीएससी इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड प्रैक्टिस, एंड दिस बैच इज गिव यू बोथ द थिंग्स, क्वालिटी कंटेंट विद प्रैक्टिस। तो दिस इज द ओवरऑल ओरिएंटेशन ऑफ रॉ, in which we are coming with very very cheaper rate. इतना रेट मुझे नहीं पता कोई लेता होगा, but 9,500 is a fees for raw that everybody can do. It is batch for everyone, whether you are fresher, whether you are old, whether you are new, जो भी हो यार। इस फील्ड में कुछ नहीं होता फ्रेशर, सारे फ्रेशर भी आईएएस बन जाते हैं, ओल्ड वाले धरे रह जाते हैं, ओल्ड बन जाते हैं, फ्रेशर रखे रह जाते हैं। तो यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि यू आर सीनियर यू आर जूनियर, यहाँ तो जो बन जाए वो राजा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस मैटर्स, बुक्स नेवर मैटर्स, वेरी मिनिमम कंटेंट एक पेज पर। जैसे ये कंटेंट हम आपके लिए बना के लाए हैं, ये एक पेज पर एक कंटेंट है, बस इतना कंटेंट होना चाहिए। जब इतना सा कंटेंट होगा तभी आप लिख पाओगे। 10 पेज का कंटेंट होगा तो उसको 2 पेज में कैसे लिखोगे भाई? तो जब 2 पेज का कंटेंट होगा तभी तो 2 पेज में लिखोगे। तो वी आर मेकिंग यू वेरी सिंपल विद कंटेम्पररी एग्जाम्पल, एनालिटिकल स्किल्स एंड सो मेनी थिंग्स। एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं आपको, लिखो एक क्वेश्चन, कोशिश करो उसको लिखने की, एंड देन वी कैन स्टार्ट अवर क्लास। तो दो डेमोस्ट्रेशन आप लोगों के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग दे आर आस्किंग इन अ वेरी, दैट इज अ सिंपल मैनर। अब मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया सिंपल, इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन? इफ इट इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई। और ये क्वेश्चन 10 नंबर में उन्होंने पूछ लिया आपसे। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने आपसे वेरी सिंपल तरीके से पूछा, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि व्हाई इंडियन डेमोक्रेसी नीड्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज दे डू नॉट हैव एनी पावर, एज दे डू नॉट हैव एनी पावर। Is there is a need to provide constitutional status to the non-constitutional bodies? Comment. Now this is a very small thing. These 2 questions they can ask. Try to generate few points in 2 minutes only. I can give you only 120 seconds. And I want to see how many points you can generate in your mind. It is a game of points only. Now 2 minutes is over. इतना ही टाइम हमें मिलेगा टू राइट। जो 2 मिनट में आप सोचोगे उसी को आप 5 मिनट में लिख सकते हो, बिकॉज इन द 10 मार्कर क्वेश्चन वी हैव 7 मिनट्स टू राइट, एंड इन द 15 मार्कर क्वेश्चन वी ओनली हैव 11 मिनट्स टू राइट। Recently UPPCX exam took place, 20 questions were there, UPSC like pattern was there, and people were feeling difficulty while attempting the questions, and everybody, majority of them, not everybody, majority of them were left with 2-3 questions. यूपीएससी में ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन रह जाते हैं, और इवन 15 क्वेश्चन जो हम लिख के आते हैं उसमें क्वालिटी वो नहीं होती जो चाहिए। क्वालिटी में क्या चाहिए? देयर आर 5 पैरामीटर्स इन द क्वालिटी। नंबर 1, 2 रेलेवेंट लाइंस, जिसको आप इंट्रोडक्शन भी बोलते हो, रिगार्डिंग द स्टार्टिंग। मिनिमम फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सम फैक्ट्स एंड सम फिगर्स इन न्यूमरल्स। फिस्कल डेफिसिट कितना % रहा, इंपोर्ट कितना रहा, भारत में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का डाटा कितना है, एडीआर की रिपोर्ट क्या बोलती है, दैट इज this thing, Association for Democratic Reform, the only NGO which are providing criminalization of politics data. आपके इंडिया के अंदर एनसीआरबी का डाटा क्या बोलता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इंडिया के अंदर लेजिस्लेशन पास होने का क्राइटेरिया क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कन्वेक्शन रेट क्या है, पार्लियामेंट कितनी चीजों को एक्सेप्ट करता है। दिस मिनिमम डाटा यू शुड हैव, बिकॉज इट इज अ डिमांड। जब आप आईएएस बन जाओगे, पॉलिटिशियन आपसे ही पूछेंगे डाटा, और आपको रटा होना चाहिए, इसलिए वो ये डिमांड रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब सर्कुलर आता है आप पढ़िए, वो बाकायदा कहते हैं अ पर्सन शुड बी गुड इन फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब यही होता है दैट इन द आंसर
at least in 15 questions you should write some facts and some figures, and it is essential. Number 2, some contemporary example जो सब जानते हो, some cases, case studies, जहां पर भी जरूरत हो, ये नहीं जबरदस्ती डाल रहे हो, जहां पर भी relevant case study आ जाए याद, वो डाल सकते हैं. And way forward is like mini personality, कि हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर. तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए. If anybody want to give me some answer, then you people can raise your hand and give me the answer and I can solve, and then we can start our formal class. अक्षय ठाकुर बोलो बेटा, माइक ऑन करो और बोलिए. हाँ बोलो, रफ स्केच बोलो. कॉन्स्टिट्यूशन का हम मेन पॉइंट से लिखेंगे कि कैसे आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविजन देता है, और मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं. कुछ प्रोविजंस जो है उसमें हमें दोनों स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग. उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ओवर द इयर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स और शेड्यूल्स इंक्रीज हुए हैं. ओके. फिर इसी एग्जाम्पल में हम पंचायती राज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि इनिशियली नहीं था लेकिन अब हम ऐड किए हैं. और फिर ये भी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इनहेरेंट प्रोविजन है, जैसे कि आर्टिकल 32 हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो स्कोप ब्रॉड कर सके, जैसे कि राइट टू लाइफ के अंदर अब रिसेंटली राइट टू प्राइवेसी भी ऐड हुई है. ठीक है. एक तरफ तो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनफ रोबस्टनेस है. ठीक है. कि वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. ठीक है. ठीक है. अब इसमें आपने जो लिखा सिर्फ 2 पॉइंट रेलेवेंट है, बाकी सब एक्स्ट्रा राइटिंग कर दी कि कितना अमेंडमेंट होना चाहिए क्या. मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो हमारी क्लास है ना यूरोपियन क्लास की तरह होना चाहिए, मोर डिस्कशन विदाउट ईगो. वी शुड डू सम कंस्ट्रक्टिव आउटपुट. रीजनिंग शुड प्रेजेंट इन एवरी आंसर. रीजनिंग होना बहुत जरूरी है. लेकिन बेटा तुमने ट्राई किया, शाबाश अक्षय बेटा. लाउडली बोलो. This flexibility part talks about the living. Flexibility makes our constitution as a living book to suit the needs of a country. Justification for our constitution to be a living book is to introduce constitutional amendments, because earlier our system was majorly focused upon democratic socialism, then it changed to capitalism during 1990s, and again now it is being shifted to Atmanirbhar Bharat Abhiyan, to self-reliance. Then evolving due to protect the basic structure of the constitution, to protect due process of law and judicial activism. Way forward is checks and balances, separation of power, digitization of judiciary and bringing it under RTA. Now, I can tell you, हर चीज हमारे पास ही है, लेकिन एग्जाम में हमारे पास समय नहीं होगा कि हम उसे सोच कर लिखें. एंड द फर्स्ट थॉट विच स्ट्राइक योर माइंड विल बी योर आंसर. इसलिए हम बोलते हैं दिस एग्जामिनेशन इज मोर अबाउट पर्सनैलिटीज देन अबाउट लर्निंग. क्योंकि लक्ष्मीकांत इज कॉमन विद एवरी पर्सन, बट नॉट एवरी पर्सन कैन राइट लक्ष्मीकांत व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग. तो यही बैच आपको एक कंडीशनिंग देगा कि आप उस तरीके से सोचें. हमसे पूछा गया क्वेश्चन, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, a very simple question, is the constitution of India is a living constitution? Justify. उन्हें पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है, जस्टिफाई. तो हम पॉइंट जनरेट करते हैं कि हम स्टार्ट कर सकते हैं 1935 से, कि 1935 एक्ट जब भारत में आया, एंड आफ्टर दैट कैबिनेट मिशन प्लान, दे टॉक अबाउट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पोलैरिटी, डाइवर्सिटी, सो मेनी किंगडम, फेडरलिज्म, so many historical agreement and the present agreement. Therefore, Indian constitution should not be rigid. It should be flexible, guided by the demand of the people. अब ये इंट्रोडक्शन सुनकर या पढ़कर कोई भी समझ जाएगा कि तुम होशियार हो. क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तब भी हमने 1935 एक्ट डाला. तो आप बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हो कि उसने जो बोला वो तो ठीक है, नहीं है. एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको बताएगा क्या नई चीजें डाली जा सकती हैं. सब लोग 10 पॉइंट लिखेंगे, वो तो तुम भी लिखोगे, तो एवरेज मार्क्स मिलेंगे ना. हमें तो कुछ एक्स्ट्रा करना है कि अगर 2 नंबर अलग से मिले तो 20 क्वेश्चन में 40 नंबर ज्यादा हो जाए और सारे पेपर मिला के 160 मार्क ज्यादा हो जाए और मैं 0 से आईएएस बन जाऊं. तो मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया 1935 एक्ट से और फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डाला और फिर उसके बाद बता दिया. दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स बी आर अंबेडकर जी ने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 इटसेल्फ इंट्रोड्यूस किया. और उसके बाद हम लोग जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट लाए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू.
तो ये 3 अमेंडमेंट एक्ट आने चाहिए और आर्टिकल नंबर 368 हमें लिखना आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हमारा सेकंड होगा ऑब्जेक्टिव्स में, जो मैंने आपको बताया ना ऑब्जेक्टिव ये हमारा, और ये मेरा मेथड होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे आप किस टीचर से पढ़ रहे हो और किससे पढ़ रहे हो। आप एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से पढ़ रहे हो जिसका टारगेट है सारे बच्चों को आईएएस बनाना, जो भी मेंस लिखे हैं इस बार। सीखना आपके ऊपर है, रिवीजन करना आपके ऊपर है, वहां मेरा कंट्रोल नहीं चलेगा, वहां आपका ओवरऑल इंटेंसिटी चलेगी। फिर इसके बाद हम आएंगे कि इंडिया के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, ये नहीं लिखना है इसमें। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कहता। हम बोलेंगे कि इंडिया में अमेंडमेंट 2 तरीके के किए जाते हैं। वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट्स, उसमें एक दो एग्जांपल डाल देंगे, दैट इज 69 अमेंडमेंट एक्ट और एनी अमेंडमेंट एक्ट विच आर रिलेटेड टू एज, सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेशंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब हो गए फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड बाय जुडिशरी टू कंट्रोल द क्लैशेस विद एग्जीक्यूटिव्स, जो जुडिशरी अगेन एंड अगेन इंटरप्रिटेशन देती है, लाइक इन द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉज, लाइक इन द केस ऑफ सेंटर स्टेट टैक्सेबल पावर्स, लाइक इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, लाइक इन द केस ऑफ votes and the election reforms. These 2 things you can describe in an elaborated manner. Then you should talk about some features of Indian Constitution. कि जब Constitution बना था तो इतने आर्टिकल, इतने शेड्यूल, इतने पार्ट्स थे, बट आज इतने आर्टिकल, इतने कॉन्स्टिट्यूशन, इतने पार्ट है। अब आपके लिए मजाक होगा लेकिन मेरे लिए सीरियस लीजिए, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट which can highlight that Indian Constitution is still a relevant constitution. And then you can highlight कि 42nd, 44th is considered as a mini constitution. And in the present time also 86 अमेंडमेंट एक्ट से लेकर 103 एटलीस्ट 4-5 आप डिफाइन कर दोगे जो मेन है, जैसे जीएसटी का डिफाइन कर देना, इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर वाला डिफाइन कर देना, फिर इसके बाद एससी एसटी की सीटें बढ़ाने वाला डिफाइन कर देना, और जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। अब हम क्रिटिसिज्म पर आएंगे कि लिविंग है लेकिन तब भी रेगुलर डिस्प्यूट चलता रहता है। आप यहां पर एक फाइट जनरेट करेंगे आखिर में वे फॉरवर्ड में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कि भारत के अंदर ये 2 चीजों पर लगातार डिस्प्यूट चलता है, विच इज द पार्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एंड दिस सेपरेशन ऑफ पावर इज अगेन हाईलाइटिंग द नीड दैट our constitution should be always be a living constitution, otherwise the same democratic government can become the autocratic government. और एक आखिर में लिख दोगे, and we again want the minimum use of ordinance, because ordinance is not a constitutional device, is an extra constitutional device जो कहीं ना कहीं living constitution की मर्यादाओं को लांघता है। तो वे फॉरवर्ड में हमने 2 चीजों को टच कर दिया, separation of power as well as क्या ऑर्डिनेंस, मिनिमम यूज ऑफ ऑर्डिनेंस। जय हिंद, जय भारत। तो आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, इस समय 96-97 बच्चा इस क्लास को कर रहा है, तो अपने रेज हैंड करके बताओ कितने लोगों को सर का डिस्क्रिप्शन बढ़िया लगा। अगर आपको बढ़िया लगा तो आपका डिस्क्रिप्शन एग्जामिनर को बढ़िया लगेगा और वो आपको नंबर देगा। और यही इस बैच के अंदर हम करेंगे। वी आर डूइंग ओनली दिस थिंग इन अवर बैचेस दैट वी कैन जनरेट द इनसाइट कि आप क्या लिख रहे हो और क्या लिखना चाहिए। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा आप क्या लिख सकते हो, आपसे लिखवाऊंगा हर क्वेश्चन को 2 मिनट में, और फिर मैं उसको 2 मिनट में डिस्कस कर दूंगा, और हर क्वेश्चन हम ऐसे 5-5 मिनट में डिस्कस करते जाएंगे और आप उसको जॉट डाउन करते जाएंगे कि सर क्या बता रहे हैं। और इसे आपका माइंड क्या होगा, कंडीशनड, है ना। पैवलोव बोला करता था कंडीशन, हर चीज की कंडीशनिंग होती है। अगर हम यूपीएससी के हिसाब से कंडीशनिंग करेंगे देन यूपीएससी कैन एक्सेप्ट अस। यूपीएससी के कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। अब ये नहीं कि आपको इमरती अच्छी लगती है तो यूपीएससी को भी इमरती अच्छी लगेगी, क्या पता उसे सिर्फ बर्फी अच्छी लगती हो तो हम उसको बर्फी देंगे, हम उसे इमरती नहीं देंगे। बाकी हम सब नॉलेजेबल है, नोबडी इज डाउटिंग योर नॉलेज, बट वी आर जनरेटिंग द स्किल्स टू गेट 450 मार्क्स इन द जीएस इटसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। Why India democracy need non-constitutional bodies as they are not having any power? How there is a need to provide constitutional status to these bodies, है ना। तो कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। First इसके अंदर first introduction में I'll write that non-constitutional bodies include the regulatory bodies, the commissions, as well as the statutory bodies. That will be my introduction. The non-constitutional bodies in India are needed for, first of all, planning. The Planning Commission is providing the overall framework for
the vision for the development of the country. Second, the commissions for the welfare of the vulnerable sections. They are mainly working in the field of investigation of the crimes and improving the policies for the people, as well as raising awareness among the people so that they can exercise their rights in a better manner. Example, there is a National Commission for Women, National Human Rights Commission, and the National Commission for Minorities. Then we can talk about the regulatory bodies which are making the 1991 reforms LPG much better in our country through better governance. Example, RBI reforms, SEBI reforms that the government is taking for improving the banking system in the country. Then we can also talk about the various statutory bodies which are working for specific sectors like telecom and various other sectors. So unke baare mein likh ke, then we can say that all these bodies except the regulatory bodies are not having the are not having the enforcement powers, which is somehow making their role in a diminished manner, and government is more powerful. However, still the government is making their overall suggestions have to be adhered to by the government. If we provide them the constitutional status, they will be more independent from the government influence, and their overall recommendations can be discussed in the parliament, just like CAG and the Finance Commission and the UPSC. So we should make them constitutional bodies. अब देखो, आप बच्चे लोग, आप में से शायद ज़्यादा आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी, और अभी यही पहला दिन है क्लासरूम के अंदर, बिकॉज वी जस्ट ओपन अवर क्लासरूम. तो मैं बताता हूँ, वैभव ने जो आंसर बताया, इट इज़ अ एज ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, और इसकी तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है. ये एग्जामिनर को बोर करने लग जाता है, बिकॉज ही इज़ हैविंग वेरी हाई नॉलेज. आप में से कुछ लोग मुंडी ला रहे हैं, तो ये बड़ा ही बोरिंग किस्म का व्यक्ति है. और बुरा तो लगेगा जब मैं इतना हार्ड बोलूंगा, लेकिन जब हम एग्जामिनर को बोर करेंगे तो कहेगा ले भैया बोरिंग मार्क्स ले दूं, 50 नंबर 60 नंबर. अब इसके बाद जितनी नॉलेज थी, इसने क्वेश्चन नहीं समझा, इसने बस रट्टा मार रखा था, क्योंकि इसके पास अपना एक पेज होगा, 2 पेज होंगे. अब इसने मुझे सुपर टैलेंट नॉलेज दिखाने की कोशिश करी. तो टीचर्स माउथ आर ऑलवेज, है ना, डर्टी और बैड, जो भी बोलना चाहो, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, पेनफुल लैंग्वेज, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं ना. तब उसने ना सारी बॉडीज के नाम बताने शुरू कर दिए, टेरी, ये वो फलाना. लेकिन क्वेश्चन ने तो ये पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के पास भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो है नहीं, तो क्या जरूरत है इन बॉडीज की, ये पूछा गया था. और दूसरा ये पूछा गया था, क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए. तो हम इस तरह से लिखेंगे कि जब भारत में इंडिपेंडेंस रिपब्लिक अडॉप्ट किया गया, कि व्हेन इन इंडिया वी अडॉप्टेड रिपब्लिक आफ्टर 1950, वी अडॉप्टेड प्लानिंग, एंड व्हेन वी अडॉप्टेड प्लानिंग देयर हैज बीन द नीड दैट वी शुड हैव द बॉडीज sometime guided by a legislature known as statutory body, and sometime guided by non-legislation, non-statutory bodies. When population increases, crime will also increase, as identified by Malthus. Inequality persists, social exclusion become a great benchmark, welfareistic principles are not working. That's why there is a need for National Commission for Women, Child, not only for SC, ST and OBC. Even corruption has been increasing, which was not only handled by UPSC. तो आपको हर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को उठाकर उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है स्टार्टिंग में. फिर आपको बताना है कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर सो मेनी रीजंस. नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन मिलते ही साथ the cases in the Supreme Court will increase. Then the problem regarding the appointment of the personals. Then modification regarding these bodies as per the time is also become very difficult. Then these bodies are compulsory for both state and center. Federal issues will increase. इस तरह के point generate करने थे. Then we should give them constitutional status. Then you can say it is not necessary to give constitutional status. But those bodies which are essential, there is a need to provide them statutory status. Like in the case of Aadhaar. That Aadhaar was passed as a money bill and now it is guiding by statutory status. Earlier there was no statutory status. Statutory status are coming with legality.
Even court, who is the final interpreter of the constitution, can do the judicial review of the various constitution. Therefore, there is a need that we should not go with the constitutional status. We can go with the constitutional status with only those things which are essential for the human development, like cooperative societies. Part 9b, ये fact डालिए. But for other things where regulatory bodies and their principles are essentials, we can just guiding by statutory status or some legality, but we cannot guide it by constitutional status, because ultimately it can increase the workload of the judiciary, which is already overburdened. Are you understanding? This is a method to write this type of questions. तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा. This is overall example of this batch, how we can proceed. So we are now starting with our, that's the first class, which is related to Indian polity and Indian constitution. Everybody received the two handouts. One is related to 10-year analysis and one is related to the paper. Open both the handout, please. हाँ भाई, दिखा नहीं अपनी नॉलेज. जमीन आसमान का अंतर था. क्यों? आपका माइंड उतना ही चल रहा है जितना आपने. मत करो रिवीजन, नेचुरल गेम खेलो. क्या खेलो? तुम में से कितने लोगों को मेरा आंसर ठीक लगा? 4-5 बैठे हो. क्या क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं? ओए सरदार, अच्छा सेकंड पता ही नहीं चला मैंने क्या बोल दिया. अच्छा, क्या चीज बेटा? हाँ, ये भी लिख सकते हो, ये भी पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेपरेशन ऑफ पावर से बना हुआ है ना, तो ये पॉइंट कट जाएगा. जुडिशरी पूरी तरह से बैलेंस मेंटेन करके चलती है, वो कभी भी अथॉरिटेटिव होने ही नहीं देगी. कौन सी अपॉइंटमेंट हो जाती है? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की भी हो जाती है. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द बैच. Now every one of you are having the handout. Those who are not having the handouts, please send your email ID on 8010068998. कुछ बच्चों ने मुझसे कुछ पूछा है. Sir, would this class be sufficient for GS? बेटा, अब GS की तो कोई लिमिट नहीं है, but this class is sufficient to qualify this means. So this class is more than sufficient to qualify this means with 400 to 450 marks comfortably. फिर सर, I need to study something else. इसके साथ साथ एक बैच और होगा 3 years of editorial and UN current affairs का, जो इन 3 दिन में ही होगा. तो ये 3 दिन मैंने जेएस के लिए रखे आप लोगों के लिए, जो मॉर्निंग 8 o'clock to 11 o'clock चलेगा. इन 2 बैच के बाद आपको किसी और कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्लियर? बस. नाउ you people are receiving the 2 handouts. One handout is related to booklet of 40 questions and one handout is related to question analysis. आप सबको दिख रहा होगा question analysis की एक बुकलेट है आपके पास. तो ये question analysis वाली बुकलेट खोलिए बेटा. send your email ID on our number. हाँ, तो call to that number only बेटा. शशिकांत. तो when you open this, there is a analysis ki what are the compartments in this book. That's a paper. How many topics are there? Paper number, page number 3 पर देखो, how many topics are there? Historical underpinning and other things, governance, polity, social justice. क्या आपका syllabus में आता है? Everything is present in this handout. And then 2019 से paper analysis किया 2018 का. 5 जगह से ये लोग पेपर दे रहे हैं. पहला पॉलिटी 2018 में 70 मार्क्स का आया, लेकिन 2019 में 105 मार्क्स का हो गया, जो मैंने आपको बताया. देन गवर्नेंस 2018 में 45 मार्क्स का आया, 2019 में सिर्फ 10 मार्क्स का रह गया. वेलफेयर 55 मार्क्स का आया था, 2019 में 60 मार्क्स का है. वेलफेयर मतलब डिफरेंट स्कीम्स, दे आर आस्किंग द एनालिसिस, लाइक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, MGNREGA, NRLM, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज, ये सब किस में आता है? वेलफेयर में.
आईआर का परसेंटेज सेम चलता है 80 to 75 to 80 मार्क्स, 100 तक चला जाता है, लेकिन ये 80 तो मिनिमम आएगा। 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन फंसते हैं आईआर के आंसर, और दे आर आस्किंग वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। और आप में से बहुत लोग अगर मुझे जानते होंगे, माय फेवरेट टॉपिक इज आईआर ओनली, बिकॉज आई एम द ऑडिटर ऑफ आईआर आल्सो इन द सो मेनी इंस्टीट्यूशंस। तो मैं आपको एनालिटिकल स्किल सिखाऊंगा। लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया कि इन द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इट इज वेरी हार्ड फॉर द यूएसए वी हैव टू पुट इंडिया, because on the one side India is banning Iran, but on the other side India is taking S-400 from Russia. Critically analyze. अब आदों को तो समझ में नहीं आएगा पूछ क्या रहा है, तो वो ये पूछना चाह रहा था कि 1990s के बाद से जब हमारा रिलेशनशिप बहुत हार्ड था विद यूएसए, आज तक का क्या निष्कर्ष निकला। क्लियर? तो आईआर 80 to 75 क्वेश्चन चलता है, इट इज टोटल 250 मार्क्स। और आईआर के अंदर ही आईओ का क्वेश्चन आता है। आईओ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है 10 नंबर का। G20, ब्रिक्स, एससीओ, आसियान, इन 4 से ऊपर आईओ पे क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन हाँ, दे आर आल्सो आस्किंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग कन्वेंशंस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस। तो हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस पर बहुत जोर देंगे, लाइक करप्शन, लाइक सो मेनी थिंग्स। तो ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू इन अ गुड मैनर। Now 2019 का हमने यहाँ पेपर डिस्कस किया है, और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज रूबरू कराऊंगा, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद आवर मेंटल, दैट्स आवर माइंड मैप्स। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया लास्ट ईयर, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। अब लैंग्वेज देखो, डू यू थिंक, इसका मतलब दे वांट टू आस्क योर ओपिनियन। डू यू थिंक, आप क्या समझते हो। They do not want any notes of any IAS, मतलब coaching center. They want that what you understand. कि do you think Constitution of India does not accept principle of strict separation of power, rather it is based on the principle of check and balance. Explain. तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने किस टॉपिक से पूछा आपको पता होना चाहिए। They are asking from comparison of Indian Constitution with World Constitution. ये उसका टॉपिक है। अब उसके टॉपिक में आपको पहले पता होना चाहिए that in the introduction I can write that USA Constitution, which is highly rigid, compartmentalization of approach, and UK Constitution, which is highly flexible, where judiciary can do the work of executive, executive can do the work of judiciary. India is a mix of both. India is the mix of both. We are having the system of judiciary which is independent, integrated. Even we are having our own legislature and executive where the overall parliament is comprising of lower house, upper house and president. ये आपके इंट्रोडक्शन में आना चाहिए विद आर्टिकल्स। अब उन्होंने पूछा कि डू यू थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। अब आप इसके फेवर में 4 पॉइंट बताएंगे कि यस आई बिलीव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट हैविंग द रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अब आप एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप करेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है और जुडिशरी उस हिसाब से चलता है। बस कभी कभी गाइडेड बाय केशवानंद भारती केस जुडिशरी कुछ लॉस को इंटरप्रेट कर देता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर 100% कंबाइंडिंग नहीं होता है। तो इसलिए हमने यहां पर सबसे पहले ही इस क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन 10 साल में कई बार हुआ है, पर लैंग्वेज चेंज हो रही है, हमें तो आर्ग्यूमेंट देना है। वी शुड गिव द आर्ग्यूमेंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव सेपरेशन ऑफ पावर इन अ रिजिड मैनर। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ डिबेट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप अच्छे से? फिर दूसरा हम बताएंगे जुडिशरी, कि इंडिया के अंदर हमारी जुडिशरी कैसे काम करती है। अपॉइंटमेंट्स का दे सकते हो इसके अंदर आप आर्टिकल 124 कि जुडिशरी इंडिया में खुद का ही अपॉइंटमेंट करती है, पार्लियामेंट सिर्फ उसको सिलेक्ट करके भेज देती है। ये भी आप लिख सकते हो कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। और थर्ड में आप 100% केशवानंद भारती 25th अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कस कर आएंगे। ये हो गया फेवर में। अब आया बट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो आप इसको स्टार्ट करोगे शाह बानो केस से कि यस इन इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर इज बेस्ड अपॉन चेक एंड बैलेंसेस। अब इसमें नंबर ऑफ एडवांटेज वो है एग्जांपल्स। अब आप इसके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? जुडिशियल एक्टिविज्म से। यू शुड राइट फ्यू पॉइंट्स ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म, देन फ्यू केस स्टडीज रिगार्डिंग द जुडिशियल एक्टिविज्म। अंडर फ्यू केस स्टडी ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म यू कैन टॉक अबाउट ट्रिपल तलाक इशू, शाहिना बानो केस, देन ये क्या बोलता है आपका करप्शन से रिलेटेड,
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लोधा पैनल से रिलेटेड, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीसीआई, इसके बाद टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, all these things are the part of check and balances. Even the same judiciary is right now providing the interpretation of the power of governor, as in the case of Uttarakhand, as in the case of Arunachal Pradesh, regarding anti-defection. अब आप जितने बच्चे नए हो, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है पढ़ किससे रहे हो? ये भी बहुत जरूरी होता है जानना कि आप पढ़ किससे रहे हो। आप एक स्टूडेंट से नहीं पढ़ रहे हो, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से पढ़ रहे हो जो 16 साल से रैंक 1 का टीचर रहा है, नंदिनी का टीचर रहा है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, सर को कितनी चीजें याद हैं और वो चीजें आपको भी याद करनी है, बिकॉज आवर ब्रेन आर सेम। बस मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, आपके मन में डिस्टर्ब थॉट्स है, उनको क्लियर करना है, एंड अगेन यू आर इन द फ्लो। तो किसी भी आंसर के अंदर एग्जामिनर एक चीज को जरूर चेक करता है, उसको हम बोलते हैं फ्लो। तो योर फ्लो शुड बी मेंटेन्ड एंड इट इज कंपल्सरी। अगर आपका फ्लो मेंटेन नहीं होगा देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड मार्क्स। तो हमने शाह बानो का केस डिस्कस किया, सो मेनी चीज हमने डिस्कस की, और आखिरी में हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि चेक एंड बैलेंस आर फाइन, बट सम टाइम द सेम जुडिशियल एक्टिविज्म इज बिकमिंग जुडिशियल ओवररीच, which resulting into fight between executive and judiciary, which are visible in the form of scarcity of the judicial personals in our country. After Article 124 capital A and their abolition, still the judiciary and the legislation are fighting regarding the appointment. Even the same judiciary is not accountable and they are not coming under Right to Information Act. तो ये आप स्टार्टिंग में आखिरी में लिख देंगे, और एक फिर कॉमन लाइन लिखेंगे किसी की भी, विंस्टन चर्चिल के लिख सकते हैं, रूजवेल्ट के लिख सकते हैं कि इफेक्टिव डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ पावर, एंड सेपरेशन ऑफ पावर इज हाईली एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द pluralistic society like India, where decentralized democracies work on the principle of trust as well as check and balances. जय हिंद, जय भारत। कितने लोगों को अच्छा लगा? अब ये आंसर 10 नंबर का है और इसको आपको 7 मिनट में लिखना है। अब ये 7 मिनट में वही बच्चा लिख पाएगा जिसके ये चीज दिमाग में हायरार्किकल मैनर में है, अदरवाइज नहीं। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर मेंस लिखा उनसे पूछते हैं, वैभव ऐसे लिखा था आपने आंसर? अगर आप लोग यहाँ क्लासरूम में आके पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं आपसे इंटरेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली कर सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाई जूम क्लासेस आर हैविंग, इंटरनेट इज ऑलवेज हैविंग द डेफिशिएंसी इन टीचिंग। लेकिन अगर यहाँ पर हो गए वी कैन डू, तो हमारा क्लासरूम ओपन हो चुका है एक तरीके से, ऑफलाइन क्लासेस है, 30 बच्चों को हम बिठा पाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन, 2-2 सीट छोड़कर बिठाएंगे। क्लियर? तो वैभव कैसे लिखा आपने? ठीक है, तो नंबर कैसे आएंगे? अगर आप बेसिक डॉक्ट्राइन और जुडिशरी के बारे में ज्यादा लिख दोगे तो नंबर आएंगे नहीं। आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए। उन्होंने बोला डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं कि भारत के संविधान में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर नॉट अडॉप्टिंग स्ट्रिक्ट, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। 4 पॉइंट इसके देने ही देने हैं, और इसका बेस्ट आंसर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बट हमारे संविधान में देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ चेक एंड बैलेंस। 4 पॉइंट इसके देने हैं, और आखिर में बस ये बता देना है कि कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना करे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट कन्वर्ट इनटू जुडिशियल ओवररीच। इवन जुडिशरी कैन बी अकाउंटेबल, विच इज राइट नाउ नॉट। तो दिस 2 थिंग्स यू कैन टच, एंड इफ यू राइट इन दिस मैनर, मेरा मानना है 10 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। 6 से ज्यादा नहीं देंगे वो, लेकिन 6 नंबर दे देंगे। बाकी लोगों को मिलेंगे 2 नंबर 3 नंबर। वो यार अलग बात है, यहाँ की जो राजेंद्र नगर और एक इंडस्ट्री चल रही है कॉमर्शियल, वो आप सब समझते हो यार, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा तो वो क्रिटिसिज्म हो जाएगा, आप सब समझते हो। यहाँ पर जो भी पेपर लिखता है बच्चा, उसको 140 नंबर मिल जाता है। वही बच्चा जब यूपीएससी में लिखता है उसको 70 नंबर मिलता है। इल्यूजन में आ जाता है कि मेरी टेस्ट से मेरे 140 आ रहे थे, यूपीएससी ने मुझे 70 नंबर दे दिया, ऐसे मैंने क्या मिस्टेक करी? 70 नंबर का डिफरेंस। तो वो 70 नंबर का डिफरेंस इसलिए है कि यूपीएससी जैसे क्वेश्चन आपको कोई दे ही नहीं रहा है, और अगर दे भी रहा है तो कोई आपको उसको सोल्यूशन नहीं बता रहा है कि व्हाट शुड बी द आंसर। और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, तो अभी हम डिस्कशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल which was established for redressal of grievance and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its power as an independent judicial authority. Explain. अब ये करंट के टॉपिक में आया था। There was the criticism of tribunal. This paper was of 2019
and they are covering in every mains paper the maximum news of June, July, August, September. लिख के रख लो, June, July, August, September and 6 months before, November, December, January of 2018 and 19. इन 6-7 महीनों से सबसे ज्यादा न्यूज को कवर किया जाता है. तो when they are asking कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो बच्चों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के सारे फंक्शन लिख दिए. वो तो पूछा ही नहीं था. पूछा तो ये था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल विच इनिशियली मेंट फॉर only central government, state government employees and the solution regarding their issues of governance which are related to jobs, transfer, promotions is now converted into, again central government employees nowadays exercising its power as an independent judicial authority. Explain. तो इसके अंदर हमारे को केस स्टडीज डालनी थी कि कौन कौन से केसेस के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अब इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी बन गया है. तो इसके अंदर एससी प्रमोशन केस डालना था, इसके अंदर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स डालना था, इसके अंदर द क्रीमी लेयर इश्यू ऑफ द ओबीसी डालना था, which was the age old issue in the UPSC right now. जिनके पापा मम्मी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, स्टेट हैं, उन बच्चों को क्रीमी लेयर इशू कर दिया गया. इस तरह के 5 इशू इसके अंदर डालने थे और इन 5 इशू को डिफाइन करना था कि which is are not coming under the scope of the CAT which are defined in the Constitution of India under article. तो आप सबको पता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का आर्टिकल कौन सा है? 323A कैपिटल A, आर्टिकल 323 कैपिटल A, ये भी पता होना चाहिए. उसके बाद 4 केस स्टडी देनी थी और आपको ये बताना था कि देयर इज अ नीड टू रेगुलेट दिस रेगुलेटिंग बॉडीज और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज. तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताने चाहिए जिसके अंदर, जिस स्कोप के अंदर ये काम कर सके. दूसरा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर देयर शुड बी द अपॉइंटमेंट ऑफ बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. But nowadays in so many central administrative tribunals in the state, only judicial officer are there, not the administrative officer. And the judicial officer are only knowing about judiciary, not about the administrative and administrative functions or rules. जिसकी वजह से भी ये बात बोली जा रही है कि now they are converted into fully judicial body, not the administrative body. क्योंकि नाम कहा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, अब इसका नाम रख देना चाहिए सेंट्रल जुडिशियल ट्राइब्यूनल, बिकॉज जुडिशरी आर ओवर डोमिनेटिंग दिस ट्राइब्यूनल. तो इस तरह से आपको लिख के आना था, आपको नंबर मिलते. अब ये क्वेश्चन तो मुझे पता है कोई नहीं लिख के आया होगा, 0 आ गए होंगे. मोहित क्या लिख के आए थे इसके बारे में? नहीं लिखा, दिया नहीं था. आपने क्या लिखा? आपने दिया नहीं था. आपने आता नहीं था. ये 10 में नंबर कट गए. अब समझ में आ रहा है ना नंबर क्यों आते हैं? 70 नंबर यहां पर आते हैं. 140 किसी भी टेस्ट को ज्वाइन कर लो, किसी भी आईएएस की जो आपको बहुत प्यारे लगते हैं, 140 तो मिलेंगे और वो आपको पूरा कॉन्फिडेंस दे देंगे एग्जाम तक कि तू ही तो है, तू ही है रैंक 1 भाई, तू ही. सारे जाएंगे रैंक 1 की तरह और वहां जाके सब रायता फैला के आ जाएंगे. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. पेपर 2 पेपर 3 में इस बार बड़े गंदे नंबर आए. 60, 70, 50, 23, 34, 57 ये मार्क्स हैं पेपर 2 पेपर 3 में. बताओ. और जो टॉपर है उनके मार्क्स 117, 120, 60 नंबर का अंतर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स? यूपी और महाराष्ट्र में फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का एजिटेशन हुआ था, अगर आपको याद हो. उसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया. इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप, लेकिन प्रेशर ग्रुप को भी इफेक्टिवली पूछा गया. तो दे आर आस्किंग द क्वेश्चन बट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. तो ये सारे क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जिनको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे. फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ कंटेशियस इश्यू रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द कोर्ट, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी and harmonious constitution have emerged. Explain. अभी पबैट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और हम आपको इस बार 5th क्लास में पबैट रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे. प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये पबैट का पार्ट है. तो वी आर आल्सो इंक्लूडिंग दिस टाइम इन दिस रॉ सम ऑफ द लैंग्वेज, सम ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग द पबैट एंड पबैट रिलेटेड टॉपिक्स. क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है? ये तो 4 बार रिपीट हो चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन में से आया. And there are 6-7 points which are very straightforward regarding the difference between Western and Indian concept of, ये Western और Indian concept of secularism है. Again, this is a second question regarding Indian comparison with the other constitution indirectly. जैसे पहला क्वेश्चन भी यही था, है ना? Check and balance and separation of power.
फिर पूछा गया डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ इंडिया स्टिल गोज विद द लोएस्ट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्जामिनिंग द इशू दैट मेक बैलेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंक्लूसिव, सोशल वेलफेयर में से आया, दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ गवर्नेंस। देन पॉवर्टी हंगर पूछा गया, पेपर 3 का टॉपिक। मैं आपको इसमें सिर्फ पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं। फिर इसके बाद पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 11, ऑन व्हाट ग्राउंड्स पीपल, नहीं ये पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है, ये भी गवर्नेंस से रिलेटेड है। 12 आया, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। तो ये आपको केशवानंद भारती केस से रिलेटेड था, जिसमें आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके लिए आपको सिर्फ पॉलिटी का रिवीजन चाहिए, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। फिर ऑन व्हाट ग्राउंड पीपल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर, हो गया ये। देन 13 क्वेश्चन इज अबाउट सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस। अब बताओ 15 नंबर में 2 पैराग्राफ का क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपको इसको बढ़ा बढ़ा के लिखना है। ये क्वेश्चन था 10 नंबर का और पूछा किसमें, 15 नंबर में। क्वेश्चन क्या है, अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब ऐसा क्वेश्चन आया ना, लक्ष्मीकांत का पूरा चैप्टर याद होना चाहिए। इसमें स्टार्ट करो, हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, who is appointed it, what is the power, what type of cases that can solve, attorney general is supported by whom, what exactly are the exceptional power of the attorney general, and in the past 10 years what cases of international importance are represented by attorney general in front of the supreme court on behalf of central government। 3-4 इश्यू उठा लो, अयोध्या वाला उठा लो, लैंड वो जो आपका ग्रैबिंग ऑफ लैंड है वो उठा लो, आधार बिल वाला केस उठा लो, जिसके अंदर सरकार को अटॉर्नी जनरल ने रिप्रेजेंट किया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, वेयर लीगल रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। सबरीमाला का केस उठा लो, जहां पर अटॉर्नी जनरल भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के कोई भी 5 प्रोमिनेंट इशू उठा लो। 5 इसलिए उठाने क्योंकि एक इशू 2 नंबर का होगा, तो 5 इशू कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर के, और 5 नंबर में अटॉर्नी जनरल की पावर। इन दिस मैनर यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी टेक्निकल, but for this you should have the coverage of both Lakshmikant and newspaper, and you should know what type of cases are adopted by attorney general of this country। इसके बाद क्वेश्चन आया पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, the reservation of the seat of the women in the institution of local self government has a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process। comment, governance, polity, contemporary part, तीनों को मिक्स कर दिया। मैं चाहता हूं इसके लिए आप 2 मिनट का टाइम लें। आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन थॉरोली बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। तो 2 मिनट्स टाइम, ट्राई टू जनरेट सम पॉइंट्स एंड देन वी कैन डिस्कस व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच इज अ मिक्स ऑफ पॉलिटी, व्हिच इज अ मिक्स ऑफ दैट इज अ गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। तो यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब कहां पर है बेबी, पीछे वाला रिवाइज करा होगा। चलो, कैसी लग रही है तुम लोगों को क्लास अभी तक, सिर के ऊपर से जा रही है बेटा। पेपर नहीं बताऊंगा, पहले से तो पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो ये बैठेगा नहीं ना। कंडीशनिंग करने के लिए पहले जिसके लिए हम एग्जाम दे रहे हैं उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए ना, कैसे दे रहे हैं। ये मैंने सही बनाया है ना, 4 साल का, 4 साल का पैटर्न पता होना चाहिए, बस बात खत्म। वैभव, आपने क्या लिखा लास्ट ईयर, यहां पर आके बोलो, लाउडली बोलना। अब देखो ये वैभव क्या गलती करके आया है। क्वेश्चन को मतलब है सिंपल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, और इसका पूरा आंसर पार्लियामेंट पर घूम रहा है, और पार्लियामेंट के 33% रिजर्वेशन पे घूम रहा है। अब मैं एक एग्जामिनर हूं जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, और वहां पर जो चेक करेगा उसका 40 साल का एक्सपीरियंस है, और ये लोग बड़े रिजिड हो जाते हैं गवर्नमेंट में काम करते करते। इन्हें बस वही समझ में आता है जो लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 33% रिजर्वेशन, क्या पैट्रियार्की को दिखाता है। अभी अगर आप वैभव का सुन रहे हो, कहीं पर भी इसका पैट्रियार्की नहीं आया, कहीं पर भी पंचायत नहीं आया, कहीं पर भी पंचायत से रिलेटेड रिजर्वेशन की प्रोविजंस या उसकी फैसिलिटीज नहीं आई, कहीं पर भी जो पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं हमारे वो नहीं आए, एंड ही जस्ट टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट। अब ये 2 पैराग्राफ हो गए, वो उम्मीद छोड़ देगा एग्जामिनर किसने आगे कुछ लिखा होगा, और वो इसको 1.5 नंबर देगा और आगे बढ़ चलेगा। 15 में से 1.5 या 2 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। तो
सब बच्चों से मैं डिस्कशन इसलिए करता हूं, एस्पायर में 8 सालों से ही हो रहा है. वी आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन, जो मेंस लिख चुके हैं, जो नहीं लिखे हैं, ताकि सबको आइडिया जनरेट हो क्या गलती नहीं करनी है. सही लिखना तब आता है जब हमें ये पता हो क्या गलती नहीं करनी है. तो वैभव वाली गलती नहीं करनी है. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. हाँ यस, हाँ हाँ मिनट रुक जाओ, पहले मुझे तो बोले दो, फिर बोलने को दूंगा. 2 मिनट रुक जाओ बस, है ना. हाँ मैं दूंगा बेटा, बिल्कुल दूंगा. तो क्वेश्चन में पूछा गया है द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो आप हाईलाइटर लेके जाएं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर हाईलाइट कर दें कि आंसर में ये वर्ड मल्टीपल टाइम रिपीट होना चाहिए, ताकि उसके दिमाग में ठुस जाए कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिजर्वेशन पे ही लिख रहे हैं. फिर हैज अ लिमिटेड इंपैक्ट, दूसरा वर्ड है लिमिटेड इंपैक्ट. तो आपको यहां केस स्टडी देनी पड़ेगी कि हाउ इट इज हैविंग द लिमिटेड इंपैक्ट, कि वुमेन के होने के बावजूद भी सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो नीचे जा रहा है. सरपंच पति राज नहीं बताना है. वुमेन के होने के बावजूद भी वुमेन रिलेटेड क्राइम ग्राम में बढ़ रहा है. वुमेन के होने के बावजूद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप काम नहीं कर रहे हैं. वुमेन के होने के बावजूद भी ओपन डेफिकेशन की समस्या आज भी प्रॉपर है. वर्क पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है. चाइल्ड मैरिजेस अभी भी हो रही हैं. तो पूछ क्या रहे हैं, और आप लिख रहे हो 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, नेशनल मूवमेंट, आर्टिकल 243. हु कैन गिव यू द मार्क्स? नहीं, हमें आगे मतलब नहीं ना, आगे सुनो उसके बाद क्या लिखा हुआ है. गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड इंपैक्ट ऑन द पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस. अभी इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस एक फेक वर्ड है. इसमें सिर्फ ये 2 चीजें पूछी गई हैं कि द रिजर्वेशन, मेन पहला पॉइंट. दूसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तीसरा लिमिटेड इंपैक्ट, हैज लिमिटेड इंपैक्ट ऑन द पैट्रियार्कल कैरेक्टर. पैट्रियार्कल कैरेक्टर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है, इसलिए मैंने सेक्स रेशियो बोला, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोला. इन द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के आखिर में आप बता सकते हो कि भैया इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट 73rd 72nd और ये जो भी अमेंडमेंट एक्ट थे, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ गया और ये सोचा कि वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ वुमेन पंचायत, बाल पंचायत एंड देयर वर्क कैन बी प्रोसीड. लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया की पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा. वी आर हैविंग ओनली लिमिटेड लेजिस्लेशन. इवन दिस लिमिटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट वर्क. Even National Commission for Women and Child is there without constitutional status. SC, ST, OBC are having constitutional status but not women and child development. तो हमने एक कोशिश करी थी कि सेंट्रल की जगह डिसेंट्रलाइजेशन पे वुमेन को पार्टिसिपेट करे, लेकिन आज भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जब मुद्दा उठता है तो कास्ट आता है, क्लास आता है, पॉवर्टी आता है, हंगर आता है, लेकिन वुमेन कहीं नहीं आता. तो एंडिंग इस तरीके से आपको करना था. दिस इज द मैनर to write the paper of the paper number 2 governance. अब जो भी बोलना चाहता है वो बोल सकता है. अंकित कुमार सिंह और वो जो बच्चा था Oppo A92020, आप बोल सकते हो. बेटा पहले आप बोलो क्या बोलना चाहते हो. अच्छा अच्छा, ठीक है, अगली बार देंगे आपको मौका. ठीक है, क्या नाम है आपका? ठीक है, नंद किशोर. मैं आपको अगली बार दूंगा टाइम. ठीक है, हाँ. तो अगर आप किसी को डाउट हो जो मैंने बताया उसमें आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों बताया आपने, तो मैं आपको उसको डिस्क्राइब कर दूंगा. हाँ भाई वैभव, कोई डाउट है अब आपका? पॉलिटिकल प्रोसेस में पूछा है तब भी आप पार्लियामेंट 33% रिजर्वेशन लिख के आएंगे. किसकी क्या बताई? जब मैंने पूछा तब क्यों नहीं बताई? क्या क्या नहीं लाना नाउ. हाँ, एक एक करके जो भी पूछे वो अपनी स्क्रीन जरूर ऑन करे. बिना स्क्रीन के नहीं बताऊंगा कि आप कौन है. हाँ दिव्या प्लीज पूछिए. देखो, मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया. आपको इस तरह से लिखना है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस गांधी जी लेके आए थे. पहली बात ये लिखोगे.
फिर इसके बाद आप ये लिखोगे कि वर्ल्ड के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 से स्टार्ट हुआ। तो इंट्रोडक्शन में बेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जरूर लिखना है। फिर इसके बाद बोलोगे कि मेजोरिटी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज अडॉप्टेड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। स्मॉल कंट्रीज लाइक रवांडा, युगांडा, बुरुंदी are having more than 50% of women participation, and in respect of this their socio-economic indicators are increasing. Within South Asia, Sri Lanka is example. ये सेकंड पैराग्राफ में आ गया जो मैं डाटा की बात करता हूं। फिर हम अपना बोलेंगे कि इंडिया अडॉप्टेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू पार्ट 9A, जो भी आप लिखना चाहो, एज वेल एज 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट। After that, we modified this and make compulsory 33% reservation of the women in Panchayati Raj institution. Purpose is three. Number one, women participation. Number two, women induced decision making. And number three, socio-economic indicators of the women can improve. Over a period of time, in spite the overall women reservation, there is no impact on patriarchy. Still, अब वो 3-4 पॉइंट आप लिख दो, और इसमें आप लाइव एग्जांपल भी दे सकते हो कि आजकल जो सीरीज आ रही है उसमें जो सीरीज आई है अभी पंचायत करके एक सीरीज आई थी अमेज़न प्राइम पर, उसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि उसके अंदर दिखाया, लेकिन ये भी दिखाया कि बाद में लोग कैसे अवेयर हुए, कैसे उसने जनगण मन गाया। तो इन सब के एग्जाम्पल सबको पता होते हैं और ये क्यूरोसिटी से भरे होते हैं और ये लाइव एग्जाम्पल यूज करना चाहिए। फिर ये लिखने के बाद आप ये बताओगे कि 33% रिजर्वेशन का मेन मकसद ये था कि वी कैन प्रोग्रेसिवली इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम पंचायत टू म्युनिसिपैलिटी टू स्टेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस पर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो हाईलाइट करता है कि पिछले 3 जनरल इलेक्शंस के अंदर कभी भी वुमेन एक इशू रहा ही नहीं है। वी आर हैविंग द इशू ऑफ क्लास, कास्ट, पॉवर्टी, लैंड, बट नॉट द वुमेन। इसका मतलब आज भी रिजर्वेशन का कोई इंपैक्ट नहीं बना। आज भी वुमेन को हम उसी प्रोटोटाइप नजर से देखते हैं, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सरपंच हो, उसको सिर्फ गद्दे पे बिठा देते हैं, बाकी उसकी कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं रहती। एंडिंग में हम राजस्थान और हरियाणा का एग्जांपल लिखेंगे। दीज आर द 2 मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट जहां पर इन्होंने रिसेंटली रिफॉर्म किया और वुमेन की मिनिमम एजुकेशन को रख दिया 8th पास एंड 10th पास। पर्पस ये था कि जब वुमेन एजुकेटेड होती है तो वो अपनी वॉइस को पुटअप करती है। अनपढ़ वुमेन कभी भी अपनी वॉइस को पुटअप अपने मेल के हस्बैंड के सामने कर ही नहीं सकती है। इसलिए 3 चीजों के अंदर उन्होंने रिफॉर्म किया। पहला, 2 फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे, सैनिटेशन इन द हाउस एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन 8th पास एंड 10th पास, जिसको राजस्थान ने रिमूव कर दिया लेकिन हरियाणा ने रिमूव नहीं किया। 3 साल का एनालिसिस ये शो करता है हरियाणा में आफ्टर मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया द परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायत हैज बीन इंप्रूविंग, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट आल्सो वेयर पंचायत इज देयर एंड द वुमेन इज लिटरेट, द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पंचायत इज फार बेटर देन अदर पंचायत एज हाईलाइटेड इन नेशनल पंचायत डे। ये मैंने अब आपके साथ पूरा आंसर डिस्कस किया बेटा, कैसा लगा? हाँ, ऐसे ही लिखना है। हाँ, याद नहीं आता ना तो मैं कंडीशनिंग करूंगा, मैं तुम्हारी कंडीशनिंग करूंगा कि आपको कैसे याद रखना है। ऐसे ही हर टॉपिक के बारे में हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है? ठीक है। अब वैभव कुछ बोलना है आपको सुनने के बाद आंसर? क्या अंतर है? फ्लो की बात कर रहा हूं मैं पॉइंट्स को नहीं गिनता, मैं फ्लो की बात करता हूं। फ्लो था आपके आंसर में जो आपने लिखा वहां पर? तुम्हारे हिसाब से ठीक था, मेरे आसपास था? ये आपको सीखना है इस बार, हमें लास्ट ईयर से मतलब नहीं, वो हमारे लिए FAIL है। क्या है? इसे हमें PASS करना है। क्या करना है? हाँ, चलो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आए। इसके बाद अटॉर्नी जनरल तो हो ही गया हमारा, है ना? इसके बाद इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज अ नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन व्हिच इन टर्न हैज एडवर्सली इंपैक्ट द क्वालिटी ऑफ डिबेट एंड देयर आउटकम। ये क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अगेन दीज आर द क्वेश्चन वेयर मटेरियल इज नॉट देयर, individual personality matters. Again I am giving you 3 minutes, craft the answer and then we can discuss again. एक चीज मैं बता देता हूं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डिस्कसिंग दिस पेपर। जब तक मैं पेपर की लैंग्वेज बताऊंगा, एस्पायर की लैंग्वेज काम नहीं है, यूपीएससी की लैंग्वेज। तो द रॉ सेशन कैन गिव यू द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी एंड ऑन दिस लैंग्वेज वी कैन प्रिपेयर अवर होल पॉलिटी गवर्नेंस पेपर 2. डन? दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग 2019 पेपर. तो ट्राई टू जनरेट 3 minutes some structure and then we can discuss. Now we can discuss
Anyone who want to tell me their answer from the Zoom platform are highly welcome. Anyone? Because ultimately you all will face this type of paper only. Never feel that you cannot write the mains. You will write, and when you will write, you will face. Everyone, but please open your, there is a cam. Okay, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? अनीश. अनीश पहले आप बोलो, फिर अंकित कुमार बोलेंगे, फिर और किसको बोलना है मैं अभी फिक्स कर देता हूँ. और किसको बोलना है? आपको बोलना है अक्षय. ठीक है, तो सबसे पहले अनीश आप बोलिए. सर इसके अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं कि पार्लियामेंटेरियन जो है वो उसके डुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक तो पार्टी की और दूसरा उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जहाँ से वो इलेक्टेड है. ओके. फिर इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करके हम बॉडी पे आ सकते हैं कि उसका रोल कैसे डिमिनिश हो रहा है या फिर वो कैसे इफेक्टिवली अपने आप को नहीं रख पा रहा. ओके. तो ये है कि उसको पार्टी लाइन टो करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ वेब्स इशूड एंड एंटी डिफेक्शन लॉ. ओके. इसकी वजह से वो कई बार जो पार्टी की स्टैंस होती है उसी के साथ उसको जाना पड़ता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो डिमांड है उनको नहीं रख पाता और अपनी फ्रीली जो अपने व्यूज हैं उनको नहीं रख पाता. फिर हम लिख सकते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनके बिल्स इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं. सिर्फ 2% प्राइवेट मेंबर्स बिल्स पर डिस्कशन हुई है इन द लास्ट 4 डेकेड्स और सिर्फ एक बिल पास हुआ है 4 डेकेड के अंदर. ठीक है. 2015 में हुआ था. फिर हम लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मेजोरिटी को यूज करके काफ़ी बार कमिटीज़ के अंदर बिल्स को नहीं भेजती है, चाहे जो कि एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट. बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ये नहीं है जो आप बता रहे हो. इसलिए मैंने बोला ना कि अब पेपर इंटेलेक्चुअल शिप पर बिलोंग करता है. इस क्वेश्चन के अंदर कुछ डाटा चेंज मैं आपको बताता हूँ. कुछ पार्ट सही है लेकिन एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में उस कुछ पार्ट ढूंढेगा नहीं. उसको वो एक समरी समझ में आनी चाहिए कि आपने उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया नहीं किया. इस बात को ऐसे समझो सब लोग कि मेंस का मतलब होता है कि वो आपके क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक समरी विड्रॉ करेगा. जैसे आप भी कोई लेसन पढ़ते हो तो एक समरी विड्रॉ करते हो ना, और उसको वो मैच करेगा विद द क्वेश्चन. जितना वो नियर मैच होगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे. इसमें इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन की बात की गई है तो मैं समझाऊंगा, लेकिन अच्छा अटेम्प्ट की आपने कोशिश की, शाबाश बेटा. ठीक है. अब आप सब लोगों ने देखा होगा, दिस इज नोन एज कंडीशनिंग ऑफ यूपीएससी. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर राइटिंग द सेम पॉइंट्स, ओनली फ्यू पीपल आर राइटिंग 1 or 2 एक्स्ट्रा पॉइंट. एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं. Individual parliamentarians' role as a national lawmaker is on decline. In the Lakshmikant or Subhash Kashyap, it means minister versus a private member. Minister versus a private member. That earlier the private member conviction, knowledge, debate procedure was that much strong. Ultimately government took it as their own issue under the policy making. तो इंट्रोडक्शन में मौलाना अबुल कलाम आजाद, देन मोरारजी देसाई, देन जेपी, है ना, जेपी आपने सुना होगा, समाजवादी मूवमेंट जेपी, देन अटल बिहारी वाजपेयी. All these people were in the opposition, and a position at that time were really working because their intellectualship was very, very strong. Even parliamentary convictions were not distorted. They start distorting after coalition government. ये एक इतिहास लिखना जरूरी होता है जो एक समझदारी पैदा करता है एग्जामिनर के माइंड में, that you people are knowledgeable about the constitution of this country. तो earlier in the 3 general assembly election there was no problem because there was no such opposition. Jawaharlal Nehru Congress I party were dominating. Then Janta movement were initiated and strong opposition crafted, which produced the leaders like जो मैंने बताया मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह. All these people contributed into some laws जो आप लिखोगे भी, international policies, land acquisition acts, health policies, ये सब individual parliamentarian का ही contribution था because at that time opposition was very high. फिर आपको पता होना चाहिए कि ये सब कब डिस्टॉर्ट हुआ? कोalition गवर्नमेंट के समय, हॉर्स ट्रेडिंग, इन सब के समय. फिर उसके बाद 2 ग्रुप बन गए, एनडीए वर्सेस यूपीए.
और विप सिस्टम प्रोमिनेंट होने लगा बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ आयाराम गयाराम, और सबने बोल दिया गया कि यू कैन वर्क अपॉन द पार्टी लाइंस, और जो भी पार्टी लाइंस के खिलाफ जाता था उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता था। ये इनिशियल 2 पैराग्राफ्स में आएगा। फिर अब हम आएंगे जो आप सब लोग बोल रहे थे कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन द डिक्लाइन, विच इन टर्न हैज एडवर्सली इंपैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट एंड देयर आउटकम। अब यहां हम 4 सेगमेंट को बांट लेते हैं। एक पैराग्राफ लिखेंगे राज्यसभा के ऊपर कि राज्यसभा एक हाउस बनाया गया था ओनली फॉर चेक एंड बैलेंसेस, where the senior most parliamentarians or nominated members from different field can generate their own ideas, even they are participating in the parliamentary committees and various constitutional committees, which are providing good amount of suggestions regarding the improvement over any type of bill or legislation, which over a period of time has been declining because the Rajya Sabha members are also, that is guided by हॉर्स ट्रेडिंग बोल रहे हैं, जो भी बोलना चाहो, या उनको लेस चांस दिया जाता है बिकॉज ऑफ सम अदर प्रोसीजर्स। दूसरा कंपार्टमेंट हम साधेंगे इसके अंदर प्राइवेट मेंबर बिल, कि प्राइवेट मेंबर बिल को तो आना ही बंद कर दिया। शशि थरूर का इसमें एग्जांपल तो ट्रांसजेंडर बिल, जो लगातार कई सालों से कोशिश किया बट इवन देन अल्टीमेटली गवर्नमेंट कैन, इसको आप सक्सेस में भी लिख सकते हो कि ये है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल रोल बिल्कुल तरह से डिक्लाइन हो गया है, लेकिन डिक्लाइन हुआ है। ठीक। थर्ड नंबर पर दैट वी आर यूजिंग गलेटिन और द प्रोसीजर विदाउट डिस्कशन वी आर there's a passing the this thing bill, especially in the case of budget, जो लास्ट ईयर में हुआ। अक्षय ठाकुर ने बताया, बिल्कुल सही एग्जांपल बताया कि बजट को भी बिना डिस्कशन के पास करना क्या करते हैं हमने शुरू कर दिया है। चौथे नंबर पर ऑर्डिनेंस का जिक्र करो कि पिछले 2-3 साल से ऑर्डिनेंस जबरदस्त तरीके से पास हो रहा है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हम क्या देंगे, रिकमेंडेशंस। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर हम केस ले लेंगे त्रिपुरा, मिजोरम, वेंकट चलैया कमीशन, जिसके अंदर उन्होंने 2-3 चीजें बोल दी। सबसे पहले बोला कि एंटी डिफेक्शन लॉज के अंदर रिफॉर्म्स आना चाहिए और हर मेंबर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए वेदर ही बिलोंग टू एनी पार्टी, बिकॉज ही आर नॉट बिलोंगिंग टू ओनली पॉलिटिकल पार्टी, बिलोंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड व्हेन ही इज नॉट स्पीकिंग अबाउट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट मींस ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग हिज ओन पीपल, इवन एट दैट टाइम इन दैट रीजन द पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी आर डिफरेंट। इससे पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इसी तरीके से विप का कंसेप्ट मॉडिफाई होना चाहिए, एब्सोल्यूट डिस्कशन का टाइम बढ़ना चाहिए और जो पार्लियामेंट में प्रॉब्लम चल रही है उनको रेटिफाई करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पीकर का रोल मोर डिफाइन होना चाहिए। इसके अंदर वेंकट चलैया केस के बाद आप ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं, दिनेश गोस्वामी कमीशन ऑर्डिनेंस में लिख सकते हैं। 3 चीजें लिखेंगे, दिनेश गोस्वामी कमीशन, वेंकट चलैया कमीशन। इसके बाद थर्ड जो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे दैट इज रिसेंटली वन केस, क्या था वो, क्या बोलते हैं, केशवन, कौन सा केस था वो, हाँ, मेघा चंद्रा केस, जिसके अंदर बोला गया कि यूके की तरह हमारा स्पीकर भी न्यूट्रल होना चाहिए, पार्टी लाइंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मेघा चंद्रा केस के बाद ये बात पता चल रही है कि वी कैन अगेन मूव टूवर्ड्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन द पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव टू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी लाइन। फिर इसके बाद आखिर में वे फॉरवर्ड में हम 3 पॉइंट जरूर लिखेंगे कि इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअलशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पार्लियामेंटेरियंस का कम हुआ है, क्रिमिनलाइजेशन बिजनेस पॉलिटिक्स से ज्यादा बढ़ी है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म पार्लियामेंट को छू रहा है। अब हमारे पास वैसे नेता नहीं है जो वैसा सोचा करते थे। फिर आप एक कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस दे दो, दैट देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर, बिना नाम लिए। सीतारमन और अरुण जेटली में दुनिया जहान का डिफरेंस है। इसी तरीके से आप दूसरा तो हो गया कि पार्लियामेंटेरियन ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग इंडिया में नहीं है, तो पार्लियामेंट जो भी चुन के आता है उसकी एटलीस्ट 15 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तीसरा, प्राइवेट मेंबर बिल और मिनिस्टर बिल, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल, की पावर्स के अंदर संशोधन होना चाहिए और प्राइवेट मेंबर बिल को भी उतना ही अहमियत देनी चाहिए जितना पब्लिक मेंबर बिल, और उसके लिए कुछ प्रोविजन सेट कर देने चाहिए कि इफ द क्राइटेरियाज आर सुटेबल, वन कमीशन इज देयर व्हिच कैन रेटिफाई, एंड इफ द बिल इज गुड दैट गवर्नमेंट कैन इंक्लूड इन द पॉलिसी गाइडलाइंस। और यहां पर फिर एक वर्ल्ड का एग्जांपल देना चाहिए यूके पार्लियामेंटेरियंस का, कि हाउ द इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन इन द यूके पार्लियामेंट इज पावरफुल एंड हैव द वॉइस, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रेक्जिट। जय हिंद, जय भारत। तो जितने बच्चों ने मेंस लिखा है, अक्षय ठाकुर, दिव्या त्रिपाठी, बेटा कैसा लगा सुनने में? अगर हम ऐसा लिखेंगे ना, नंबर मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं नंबर मिलेंगे।
और ये हम, मैंने बोला था कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 1800 क्वेश्चन आंसर की, अपने आप तुम्हारा माइंड चलने लग जाएगा इसी धारा में। ये 3 महीने इतनी कंडीशनिंग करूंगा दैट यू पीपल कैन राइट इन द सेम मैनर। क्लियर? तो दिस इज अ मेथड टू राइट इट। क्लियर? फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आया। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। सर मैंने जो पहले आंसर बोला था वही, हाँ सर जो आपने पॉइंट बोला मैं वही वाले पॉइंट बोल रहा था। नहीं, आपने जो स्टार्टिंग में बोला वो तो बिल्कुल सही था। मैंने जो पॉइंट बोले मैंने तो उसे कंपार्टमेंटाइज किया, स्ट्रक्चरिंग करा। आप सब लोग भी वही बोलते हो लेकिन स्ट्रक्चरिंग मिसिंग होती है। हाँ बोलो बोलो। हो सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो। सर मेरे हिसाब से जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो एक इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को एक अपॉर्चुनिटी पावर देती है। हाँ बिल्स को बस स्क्रूटिनाइज कर सके। तो अगर कोई गवर्नमेंट बिल्स को नहीं भेज रही है कमिटीज के पास तो एक इंसान डिस्कशन नहीं हो सकती। तो क्या हम इसको इसमें मान सकते हैं कि उनकी नहीं, आप बिल्कुल मान सकते हो, आप उसे लिख भी सकते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में कोई भी फ्रेम लाइन नहीं होती है, हर चीज करेक्ट होती है उसमें। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि डिस्कशन के बिना ही बिल पास कर दिया जा रहा है तो इसके अंदर अपने आप ही हर चीज इंक्लूड हो गई। देन व्हाई वी शुड वेस्ट अवर टाइम? वी शुड राइट 4 इंडिविजुअल थिंग, ताकि उसको अलग से समझ में आए कि एक एक पैराग्राफ में हमने 4 कंटेक्स्ट को पकड़ा है, और इसी को स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। पॉइंट्स कभी गलत नहीं है, जो आप बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन हम जब भटक जाते हैं तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपको बस एक वर्ड सीखना है आज, हाउ टू सेल अवर आंसर, क्योंकि वहां पर जो बंदा है वो हमें नहीं जानता, अपना नाम, क्योंकि कॉपी पे कोड वर्ड लिख दिया जाता है, खाली नाम सब फाड़ दिया जाता है। आपकी कॉपी जब चेक होने जाती है उसके ऊपर एक सीक्रेट कोड लग दिया जाता है, जिससे पता चलता है यूपीएससी को किस बंदे की कॉपी है। तो जो एग्जामिनर है उसको नहीं पता यू आर ही और शी, यू आर हु, इंजीनियर, डॉक्टर और व्हाट, वो आपके राइटअप से ही समझते हैं। तो मेरा कंसर्न ये था बेटा, और कोई कंसर्न नहीं था। आप गलत नहीं हो, नहीं आप गलत नहीं हो, हम सिर्फ कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम, आधे बच्चे तो पागल हो जाएंगे वर्ड सुनते साथ कि ये न्यू लिबरल पैराडाइम क्या होता है। इसका मतलब होता है, अलग अलग तोड़ लो, बोलो लिबरलिज्म, 1991 का लिबरलिज्म है ना, एलपीजी लिबर्टी ग्लोबलाइजेशन है ना, एलपीजी का, और नियो मतलब आज का दोबारा से एक और नया लिबरलिज्म। क्या मेरी बात समझ गए? तो नियो लिबरलिज्म, जैसे आता है वर्ड नियो इंपेरियलिज्म, ऐसे वर्ड आया नियो लिबरलिज्म। तो पहले इंग्लिश पे काम करेंगे ना। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग, multi-level planning expected to make operation cost effective and remove many implementation blockage. Discuss again, this is a question of polity plus governance plus contemporary part. Again I am providing you 3 minutes. I want a good discussion again for this question. आप समझ रहे हो लास्ट ईयर का पेपर कितना हार्ड था? हार्ड इसलिए नहीं था कि क्वेश्चन हार्ड थे, क्वेश्चन तो इजी थे। उन 3 घंटों में सोचना हार्ड था, व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट। तो प्लीज 3 minutes again. Now, anyone who want to tell me the answer, please tell me. Raise your hand and please tell me. कोई भी नहीं देना चाहता इसका आंसर? इतना गजब। बोलो अंकित कुमार सिंह, हाँ बोलो बोलो। नहीं बेटा, यू कैन टेल मी द आंसर, बोलो। सर जो मैंने अपने बेस में लिखा था मैं वही बताता हूँ। हाँ बताओ बताओ। मैंने इसका स्टार्ट किया था इंडिया के इंडिपेंडेंस। आपको कितने मार्क्स मिले हैं इस बार पेपर 2 में? 72, बस मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट। अच्छा, चलो ठीक है, फिर तो अच्छे मार्क्स मिल गए। चलो बोलो फिर बोलो। मैंने इसमें लिखा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का अडॉप्ट की थी, ठीक है, which was top down and bureaucracy centric. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी, प्लान कर रही थी और फिर रिव्यू भी कर रही थी। ठीक है, तो उसकी वजह से एक आइवरी टावर अप्रोच था which was not tuned with the demands at the ground level, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस भी लो रही है और करप्शन ज़्यादा रहा, कॉस्ट एंड टाइम ओवररन हुआ। बहुत बढ़िया। फिर मैंने न्यू लिबरलिज्म को थोड़ा सा डिफाइन किया था। क्या होता है आपके हिसाब से? एलपीजी, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड सिटीजन सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया था कि
ठीक है, तो पीपल पार्टिसिपेशन की वजह से एक्सेप्टेंस इंक्रीज होती है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होता है। अल्टीमेट रिजल्ट होती है, मतलब ये फ्लो चार्ट में ही बनाया था मैंने। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल डाला था आपने, सॉरी, कुछ एग्जाम्पल डाला था बेटा आपने? एग्जाम्पल इसमें मैंने उसी का एमजी नरेगा का डाला था कि जो बेनिफिशियरीज हैं ठीक है, लोकल लेवल पे वो हो रहा है, सोशल ऑडिटिंग हो रही है उसकी। ठीक है, और फिर उसके बाद लोकल सॉल्यूशन टू लोकल प्रॉब्लम्स, मतलब इतना ही लिखा था मैंने, ज़्यादा नहीं लिख पाया था। कुछ एग्जाम्पल डाला था आपने? लोकल सॉल्यूशन का नहीं सर। ठीक है। तो मैं तुम्हारे को 2 फीडबैक देता हूँ, ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस के प्रति बहुत अच्छी है। पहले वाले क्वेश्चन में आप बिल्कुल सही जा रहे थे। मैं जो आपका पहला वाला पार्ट अच्छा भी लगा, जो मैंने आपको बताया थ्रू अक्षय ठाकुर ने भी उसको बोला था। आपकी पहले वाले क्वेश्चन में स्ट्रक्चरिंग की दिक्कत थी। इस वाले क्वेश्चन में स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी है, पास्ट टू प्रेजेंट, लेकिन इसमें एग्जाम्पल्स नहीं डाल रहे हो आप। जब भी हमें पूरे नंबर लेने होते हैं, जैसे कि मान लो आप सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात कर रहे हो, तो कुछ एविडेंस, कुछ एग्जाम्पल डालो, और अब उसी चीज के कंटेक्स्ट का डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का डालो, तो आपको उसमें नंबर ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक ऑफ गवर्नेंस एंड वेलफेयर। बाकी क्या नाम बताया आपने अपना? अवनीश, अनीश। अनीश बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चरिंग और कोरिलेशन पर दिमाग लगाना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप ये बैच कंटिन्यू करोगे, ठीक है? अभी मैं समझाऊंगा ये आंसर कैसे लिखना है। कोई और बताना चाहता है? अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, है ना, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एंड पबेड आल्सो। कविता, हाउ आर यू बेटा? हाउ वाज योर पीटी एग्जामिनेशन? बेटा हमने संजीवनी बैच में सब पढ़ा दिया था, देखो सब वहीं से पेपर आया है। चलो कोई बात नहीं, वर्क हार्ड फॉर जून, पास में है जून, है ना? आंसर बताओ अपना। आप सबको टॉपिक्स का आइडिया आ रहा है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव आंसर कैसे लिखना है वो हम बताते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा गया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग, न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग is expected to make operations cost effective and remove many implementation blockage. Discuss. बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो हमें पता चलना है कि 1947 इंडिया अडॉप्टेड हरसेल्फ एज अ वेलफेयर स्टेट। फंडा सेम है, 11 मिनट्स, थॉट्स आने चाहिए जबरदस्त। देन वी टुक फ्रॉम वेरियस कंट्री वेरियस मॉडल। आपको याद होगा 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इन इंडियन प्लानिंग कंटेक्स्ट व्हाट इंडिया टुक फ्रॉम डिफरेंट कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिया को टुक ग्रोथ पॉइंट मॉडल, एंड इन दिस ग्रोथ पॉइंट मॉडल वी अडॉप्टेड PSU मॉडल आफ्टर महानलोबिस, which make India planning process top down. इंडिया प्लानिंग प्रोसेस क्या बन गया? टॉप डाउन। ये मैं अपने इंट्रोडक्शन में लिखता। देन इन 1991 we adopted LPG but without modifying our planning commission. We adopted LPG without modifying the planning commission. Even we adopted new industrial policy. New industrial policy. Even in new industrial policy, D-license is there, but again it is in a top-down manner, not in the bottom-up level. ये मेरे स्टार्टिंग के 4-5 लाइन्स में आएगा। फिर मैं कॉन्ट्रास्ट लाइन लिखूंगा। In the new liberal democracies or the new liberal planning, we are moving for minimum government and maximum governance. Guided by this, we adopted National Institution for Transforming India, Niti Aayog. And National Institution of Transforming India talks about multi-level planning, which are highlighted through. अब मैं 5-6 केस स्टडी उठा लूंगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट, village level implementation agencies are available, which can maintain the proper records of the biodiversity. Even the people who want to use that biodiversity can take the permission of local level, which can be cost effective and other things. दूसरा एग्जांपल ले लूंगा, NRLM, NULM, आजीविका, all the village level self-help group, financial inclusion,
Bank linked self-help program are only guided by the permission of local, that is a government. Third, MJNREGA, top class example of Panchayati Raj institution and cost effective decentralized planning. Multi-level planning की बात करनी, MJNREGA is a classical example. Panchayati Raj institution can organize Gram Sabha. Gram Sabha can elect all the projects. 50% implementation is through Gram Sabha, other 50% through line departments. And by this thing, government can only allot the funds. Every decision, implementation, social auditing, maintenance, all are only through MJNREGA. हम बच्चे बस यही गलत करते हैं जहां पर हमारे नंबर कट जाते हैं. Then National Food Security Act, again National Food Security Act and their implementation and the grievance redressal at decentralized manner, cost effective planning and so many other things. And last, National Watershed Development Program, it is itself a governance part. National Watershed, there is a development plan, local self-government and other things. इसके अलावा एक साथ लिख दो ICDS program, जो भी चीज है ये सब इसके थ्रू ही आगे बढ़ रही है. And most recently cooperative societies, FPO, farmer producer organizations and others are also the classical example of multi-level planning. Multi-level planning is right now the need in our country because India is a diverse country with diverse issues. Agriculture are defined by agroclimatic zones. Cooperative federalism is a need of this country. Fiscal federalism is a need. That's why after 14 Finance Commission, we are now adopting the abolition of central sector scheme and center sponsored scheme. And we are giving more financial autonomy with the help of Panchayati Raj institution and decentralized planning. Everybody can do this thing. Even it is applicable in the municipality in the case of Swachh Bharat Abhiyan, Amrut, smart city concepts, digital, there is this thing, municipal bonds. We are empowering the municipality for the urban governance, urban quality, and we are also trying to eliminate the dispute. आखिर में राजीव गांधी की कोट लिखेंगे कि India is that type of country where 1 rupee by the central government can reach to the rural area in the form of 5 paisa. But in the recent time, because of multi-level planning, the proportion of this has been increasing to 45 to 50 paisa. Still, corruption is there. That's why there is a need for common service centers, decentralized digital governance in the form of state data centers as well as common service centers, vertical and horizontal distribution of finances. Even government can empower the Panchayati Raj institutions, especially the women, through Panchayati training or literacy program. Jai Hind, Jai Bharat. कितने लोगों को ये आंसर जबरदस्त लगा? Raise your hand. आया मजा? This is a method. जो ऐसा लिख के आएगा उसको नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे. ये केस स्टडी बहुत मैटर करती है जो मैंने आपको बताया ना. इसके थ्रू ही आप मल्टी लेवल प्लानिंग को डिस्क्राइब कर सकते हो जहां पर 4 tier ऑफ गवर्नेंस काम करते हैं. और इसके थ्रू आप बता सकते हो हाउ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाउ इट इज वेरी वैल्यूएबल इन डिसीजन मेकिंग. अब इसके अंदर एक और लिख सकते हो जीआई इंडिकेटर. जीआई इंडिकेटर में भी लोकल लोग काम करते हैं. ईआईए भी लिख सकते हो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. लोकल लोग ही हियरिंग करते हैं, वही डिसीजन देते हैं, अपने आप प्रोजेक्ट पास कर दिया जाता है. और रिसेंटली 2-3 चीजें और इसमें ऐड कर सकते हो. कैंप ऑफ फंड. कैंप ऑफ फंड में भी लोकल गवर्नमेंट का पूरा क्या है रोल. और फॉरेस्ट राइट एक्ट. जितनी नई चीजें डालोगे, जितना रिलेट करके क्वेश्चन से बताओगे, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे. दिस इज अ प्रोविजन, दिस इज अ वर्जन विच आई रियली वांट टू डिलीवर यू एंड दैट्स व्हाई वी क्राफ्टेड द रॉ बैच. क्लियर? तो 16 क्वेश्चन इतना जबरदस्त था जो अगर आप इतना ज्यादा लिखोगे तो आपको 9-10 नंबर मिल जाएंगे आराम से इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? मल्टी लेवल प्लानिंग की डेफिनेशन और डाल देना विच इज अवेलेबल इन द बुक, जो मैं आपको कंटेंट में डिलीवर करूंगा. क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 आर फ्रॉम IR and other it is not from polity. So this is overall analysis of 2019 paper. और ये 2019 पेपर एक चीज डिस्क्राइब करता है कि all the questions are easy, but there is a need that we should understand the language. तो मुझे वो पेपर इजी लगेगा लेकिन आपको वो हार्ड लगेगा. उसका रीजन यही है, एक्सपीरियंस एज वेल एज कंटिन्यूटी इन दिस फील्ड फ्रॉम 2005 to 2020. तो 16 साल हो गए इस फील्ड के अंदर. तो आई एम नोइंग कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग. बट मेरा मानना यही है कि वो टॉपिक्स को रिपीट करते हैं. दे आर ओनली रोटेटिंग द टॉपिक्स. बस वो लैंग्वेज के साथ गेम खेल रहे हैं. और हमें 3 चीजों को कभी नहीं भूलना है जो मैंने फिर से बोला. एक बार मैं फिर से बोलूंगा. नंबर 1, गुड इंट्रोडक्शन, दैट इज ऑफ 2 lines which can be in context of the question. Number 2, 4 points of objectives, 4 points of body, 4 points of criticism and 2-3 points of way forward. Way forward is must. Way forward एक नंबर ज्यादा दिलवाता है. But way forward is clearly the depiction of your personality, nothing else. इसके अलावा 2 चीजें जरूर डालनी है सब बच्चों को, facts and figures. Facts and figures are always important, without which number cannot be obtained.
and good case studies in context of the question. और जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी गई है उसी को आपको आंसर में बार बार इंट्रोड्यूस करना है ताकि उसको पता चलता रहे that you are writing within the context of the question. If you are doing this thing, your paper will complete within 3 hours. Even you can get good marks. So everybody can open the Lakshmikant now. First we can do so many topics of Lakshmikant with their analysis, and then one by one we can do some other topics. It is already 3. I am giving you 20 minutes break, 25-30 minutes break, and then we can start. We can complete. मैं बताया था course of action क्या होगा. First we can complete the whole Lakshmikant and all the related topics. जैसे हमने target 50 में किया था, पूरी लक्ष्मीकांत रिवीजन करा दूंगा आज. क्लियर? It will take 3 hours. कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे. और उसी बीच में हम लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को एनालाइज भी करते जाएंगे, तो आप लिखते जाना उसी में, ठीक? उसके बाद वी कैन डू दिस 40 क्वेश्चन आंसर बुकलेट इन अ गुड मैनर, एंड देन वी कैन कंप्लीट द टुडे सेशन. क्लियर? तो प्लीज हैव योर ब्रेक एंड वी विल कम अगेन सून. थैंक यू.